Assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. So here in this video we will talk about cross-culture fellowship program in Germany. So ये basically एक 2 to 3 months program है जर्मनी में और उन लोगों के लिए जो कि volunteer हैं different organizations के साथ काम कर रहे हैं और they are dedicated about their community. So before going into the details of this fellowship, those of you all who are new to my channel, please go and subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update. So talking about this CCP fellowships, it is basically for strengthening civil societies और इसके अंदर different domains हैं जिनके अंदर ये काम कर रहे होंगे. इसके अंदर होगा ये कि सीसीपी पार्टनर कंट्रीज़ होंगी, उनके अंदर जो है वो वॉलंटियर्स जाएंगे या फिर होस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जर्मनी के अंदर हैं वहाँ पर ये भेज देंगे इन वॉलंटियर्स को जो सेलेक्ट होंगे इस फेलोशिप के थ्रू. इस प्रोग्राम के अंदर डिजिटल और ऑन साइट फेलोशिप दोनों है डिपेंडिंग अपॉन दी कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस और मोस्टली अब जो है वो ऑफलाइन होगी यानी कि उस कंट्री के अंदर होगी. सो होम इज़ द प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर. सो देख लेते हैं यहाँ पे कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं. सो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे इसमें अल्जीरिया है, आर्मीनिया है, देयर आर प्लेंटी ऑफ कंट्रीज़ इन दिस क्राइटेरिया who are eligible for this program. So पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, उज़्बेकिस्तान है. सो यहाँ पर आप लोग इसको देख लेंगे. Then talking about the prerequisites for this fellowship. So आपको चाहिए क्या क्या इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए. So these are as follows. The applicant must be at least 23 years old at the time of application. At least 2 years of proven professional experience or volunteer work in a civil society organization in the country of origin. Then there will be good written and spoken English skills, and there are required the applicant in good health for a longer stay abroad. Desirable क्या चीज़ें हैं. The applicant has been or is socially engaged for long term. The applicant can prove full-time experience in the field of work. A collaboration with an organization in the target country is in progress or planned. The applicant possesses further language skills, particularly German. So यहाँ पर डिज़ायरेबल है कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज हो, लेकिन अगर नहीं है तो दैट वुड नॉट अफेक्ट योर एप्लीकेशन एट ऑल. फेलोशिप्स आर प्रिंसिपली अवॉर्डेड टू पीपल वर्किंग इन द फॉलोइंग फील्ड्स. सो यहाँ पर आपने जो मेन टारगेटेड फील्ड्स हैं इनकी वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ policy and society. Second one is media and culture. Third one is human rights and peace, sustainable development. And in addition, in 2023, the following key topics will also be focused on: digital civil society, climate justice, and इसके अंदर एक और चीज़ भी है. सो एक्सक्लूजनरी क्राइटेरिया फॉर द एप्लीकेशन. सो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के अंदर जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं. अभी सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, जो कि पास आउट हो चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी से और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए जो कि आपने उसी ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन, आपकी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so what does the funding includes? So primarily CCP fellowship promotes civil society actors, strengthening them in their work. This includes the following support and offers collaboration with a guest organization from CCP network, either on-site or online, mentoring for the duration of fellowship, online on-site professional training in the fellows' field of work, taking their individual and professional aims into account, networking with other CCP fellowship holders, inclusion in the CCP alumni network for fellowship holders, focusing on one of the key topics of CCP, participation in a professional event. Then the IFFA will cover the following costs for participants from abroad. एक monthly stipend दिया जाएगा 550 euros का, and then आपका round trip, air fare, accommodation वगैरह सारा कुछ जो है वो इसमें adjust होगा. Then they will cover the cost for participation from Germany. जो पार्टिसिपेंट्स हैं जर्मनी के वो भी इसमें अप्लाई कर रहे होंगे. पार्टिसिपेंट्स आर नॉट मेंट टू टेक फैमिली मेम्बर्स सच एज स्पाउसेस और चिल्ड्रन विद देम. देन एप्लीकेशन के बारे में अगर देखा जाए, सो एप्लीकेशन इज़ इन 3 स्टेप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है उसके पास जाना है. यहाँ से हम लोग इस एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, हाँ.
हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन विद एप्लीकेशन पोर्टल, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड। और इसके अंदर हम देख लेते हैं विच एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ताकि हम उनको अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने उनको जो है वो कर लिया हो मैनेज। यहाँ पे एक टेम्पलेट है जो कि रिकमेंडेशन लेटर का है, यहाँ से आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसमें जो है वो आपने क्या देना है, रेफरेंस पर्सन जिसके लिए रिकमेंडेशन होगा, यानी ये रिकमेंडेशन आपकी होस्ट एनजीओ या कोई फंक्शनल बॉडी है, या आप अगर अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप लोग आपकी खुद की एक कम्युनिटी है, तो आपने खुद का नहीं रिकमेंडेशन देना, आप कोई एक्सटर्नल पर्सन को चूज़ करेंगे, वो आपका रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपका पोजीशन क्या है, योर ईमेल, योर टेलीफोन नंबर ऑर्गेनाइजेशन का। देन प्लीज़ इंडिकेट इन व्हाट कैपेसिटी, हाउ वेल एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव नोन द एप्लीकेंट। 1500 कैरेक्टर्स में आपने ये लिखना होगा। देन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो बताएगी व्हाई वुड यू रिकमेंड द एप्लीकेंट टू पार्टिसिपेट इन द क्रॉस कल्चर फेलोशिप प्रोग्राम, how would you access the benefit for the home organization or community if the applicant would be granted a fellowship program in Germany, and then is your organization already in contact with the partner organization। और इसके अंदर ये भी बात है, आपको पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है आप पार्टनर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट वुड नॉट अफेक्ट योर एप्लीकेशन एट ऑल। सो यहाँ पर आपने कॉन्सेंट दे देना है, ठीक है। जो आपकी वर्किंग बॉडी है वो कॉन्सेंट देगी कि ये इतने से इतने ड्यूरेशन के दौरान हम इसको एक लीव देंगे, ठीक है, जिसमें ये फेलोशिप कंप्लीट कर सकता है आपने। सो यहाँ आपने सिग्नेचर और स्टैम्प चाहिए होंगे रिकमेंडेशन लेटर के। और अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन के पास जाते हैं। सो कॉल फॉर सीसीपी फेलोशिप्स, यहाँ पर आपके पास कंट्री लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने जाना है अपनी कंट्री के अंदर। खोलेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म खुलेगा। सो हमारे पास अब आ जाएगा मेटा डाटा सीवी अपलोड करने के बाद। इसमें आपका जेंडर पूछेंगे, योर टाइटल, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, और देन स्ट्रीट एड्रेस और पोस्ट कोड जो भी है आपका, और सिटी कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, योर कंट्री। देन डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी के बारे में पूछ लेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे। देन आपके पास आ जाएगा स्कूल, एजुकेशन एंड करियर। सो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपका, आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से चेक कर लोगे, बैचलर्स के हैं, मास्टर्स के हैं, पीएचडी के हैं। देन फील्ड ऑफ वर्क क्या है आपका। सो यहाँ पे जो डोमेन्स है ना, इनके अंदर जिनके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप उनमें से एक सेलेक्ट कर लोगे। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप लिख देंगे, अगर नहीं है तो नन कर देंगे। वोकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास अदर है, देन आपका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है इस टाइम, देन योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे फ्लुएंट है, एडवांस्ड है या बेसिक नॉलेज है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है या नहीं है, फर्दर लैंग्वेजेस यहाँ पर आप डाल सकते हो। अगर पाकिस्तान से हैं तो आप उर्दू या अरेबिक डाल सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा, नॉलेज ऑफ जर्मन है या नहीं, आप ये भी डाल दोगे, ठीक है। व्हाट आर योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग टू द सीसीपी फेलोशिप एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल फेलोशिप एट एन ऑर्गेनाइजेशन इन जर्मनी और होस्ट कंट्री, विच प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज वुड यू लाइक टू एक्वायर। सो आप सीसीपी फेलोशिप को अंदर एनरोल करने के लिए क्यों मोटिवेटेड हैं, और क्या स्किल्स हैं जो आप लोग इस फेलोशिप से गेन करोगे। तो आप यहाँ पर एक 1500 कैरेक्टर्स का यहाँ पर आप इसका आंसर लिख देंगे। In which areas do you work and would like to deepen your professional expertise। So यहाँ पर आप बताओगे कि किस एरिया को आप टारगेट करना चाह रहे हो और उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाह रहे हो, ठीक है। Then please describe your ideas in what kind of organization and which profound field you would like to be hosted। So यहाँ पे आप वो अपना जो डोमेन आपने सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे कि आप वहाँ पे उस फील्ड में क्या क्या काम करना चाह रहे हो, और जर्मनी में आप कौन सी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाह रहे हो। अगर आपके पास जो है वो आप रिसर्च करके आप चेक कर सकते हो वहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें सीसीपी फेलोशिप होती है मोस्टली। देन आप ब्रीफली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स और योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आप बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, एंड देन प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोग्राम।
देन मिससेलेनियस क्वेश्चंस हैं, आपके वॉलंटरी सर्विस आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आप दे देंगे। आर यू ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद होस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब्रॉड। सो यहाँ पर इसकी जो FAQs हैं वहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि आप होस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाहर के किसी को जानते हो, ठीक है। आप वैसे भी जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे येस या नो आप कर सकते हो। हाउ डिड यू लर्न अबाउट CC प्रोग्राम, आप इसके अंदर रिस्पॉन्स ऐड कर लोगे अपना। होम ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपकी, ठीक है। एंड देन प्रेफर्ड पीरियड ऑफ फेलोशिप जो है आपका क्या होगा। इसके अंदर ऑन साइट और डिजिटल फेलोशिप्स दोनों हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर जो 1 मिनट जो टाइम है ना, ड्यूरेशन आपने वो अपने हिसाब से बता देनी है कि आप किस वक्त अवेलेबल होंगे। देन यहाँ पे अटैचमेंट्स वाला आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आप फ़ोटो अपलोड करोगे, आप CV अपलोड करोगे, और यहाँ पे एक जो है वो आपके पास टैम्पलेट है रिकमेंडेशन लेटर का जो हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा था, ठीक है। तो हम वो रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे इसको एग्री करेंगे एंड देन यहाँ से हम इसको सेंड कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर आवर एप्लीकेशन। सो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ if you find them helpful. Till next, Allah Hafiz.